Hello, everyone. Welcome to another episode of In Conversation by Advisor Coach. Today in conversation, our guest is Mr. Ritesh Pathak, Deputy Chief Business Officer with Motilal Oswal Mutual Fund. Welcome, Ritesh, to In Conversation by Advisor Coach. Thank you so much, Suren. Thanks for having me. Excellent. So, Ritesh, getting straight into the conversation, a very interesting fund has been launched by Motilal Oswal on the 5th of June and closing on 19th of June, which is the Motilal Oswal BSC Clean Environment Index Fund. Correct. Okay. So what fund is this all about? The BSC Clean Environment Index Fund. And is there anyone running this kind of strategy only on an active or a passive space? Yeah, thanks, Suren, for first of all for having a chat because I think it's a great time as far as coming up with these kind of funds. This is first time in India, AMC launching a clean environment index fund. Idea is to invest in those companies who are basically getting their revenue predominantly by businesses which are in the clean environment phase businesses. So, we all know that as a country, we are looking at adopting more and more non-fossil fuels, more greener way of, let's say, on the energy side. So this one is predominantly will be aiming to capture those companies which are into businesses which are primarily towards working towards the clean environment of the country. Wonderful, wonderful. So tell me something. Is there any strategy running like this already to any passive or active strategy? No, no, no. So as of now, no strategy running like this. So generally, people get confused कि क्या ESG equal to clean environment है or energy equal to clean environment, but actually not because once we look at the those indexes also, for example, let's say a energy kind of index, overlapping hardly 10-11%. So Hmm. absolutely not. It is more of coal, oil, conventional energy. Clean environment is more of the new, EVs and the renewables energy kind of companies. Again, ESG may, if you look at the index itself, there is no clear structure of revenue coming from any company on the ESG model. It's more a scoring system. So again, it's not a very unique proposition for investor to invest in the cleaner businesses which are focusing on the more clean environment of the India in future. So बहुत ही यूनिक इंडेक्स है और अभी इस वक्त तो किसी के पास अवेलेबल नहीं है पहला फंड इंडस्ट्री का है. Excellent. So Motilal Oswal takes the lead in another fund category. Absolutely. Superb. So tell me, ऐसे इंडेक्स क्रिएट करने का, क्लीन एनवायरनमेंट इंडेक्स क्रिएट करने का जरूरत पड़ा क्यों? Why was it so needed? सो सुरेंद्र जी देखिए आप मुझसे शायद अग्री करेंगे कि uh, सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हमने देखा है पास्ट में तब बना है जब वैल्यू माइग्रेशन हुआ है. Hmm. जैसे कि आप देखिए बॉस्टन टू बेंगलुरु आईटी का वैल्यू माइग्रेशन हुआ सर्विसेज का. हमने देखा पीएसयू बैंक टू प्राइवेट बैंक वैल्यू माइग्रेशन हुआ और बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएशन हुआ हमें बैंकिंग साइड पे. और हम जो देख रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है कि फ्रॉम अ फॉसिल फ्यूल टू नॉन फॉसिल फ्यूल का हम वैल्यू माइग्रेशन देख रहे हैं. तो एज अ कंट्री अगर आप देखिए कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है ऑयल एंड गैस पे. आप देखिए कोल पे तो करीब 20% हमारे पूरे इंपोर्ट का जो बिल है इट इज प्राइमरली ऑन द ऑयल एंड क्रूड साइड. It also have a very negative impact on the fiscal part of the Hmm. country. Hmm. So अगर आप देखें it is for lot of sense for the government also to move towards the renewable kind of energy. और कहीं ना कहीं पुश भी आ रहा है कि हम अडॉप्ट करें मोर क्लीनर काइंड ऑफ एनर्जी. सो कहीं ना कहीं हम एक तो फॉसिल फ्यूल से दूर जाए, दूसरा हम लोग यहाँ पे रिन्यूएबल को अपनाएं. और Hmm. इसमें एक और एडिशन है कि अगर आप देखें कि जब हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं देयर इज अ इम्पैक्ट टू द एनवायरमेंट वी आर इन. सो आई वाज लुकिंग द डेटा आउट ऑफ द 180 कंट्रीज इंडिया इज रैंक 176 इन द एनवायरमेंटल. मतलब हम ऑलमोस्ट नीचे पायदान पे है रैंकिंग में, विच इज नॉट अ ग्रेट सिनेरियो फॉर द कंट्री. Hmm. Also, sixth time in a row, Delhi is the most polluted capital of the world. Again, nothing to be proud of, honestly. The most hottest city in the world is Barnahat, again इंडिया से है. और अगर आप टॉप 20 सिटीज देखिए कि दुनिया की जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है उसमें 13 सिटीज इंडिया की है.
So there is a big need globally, of course, and Paris Climate Summit में पूरा decision हुआ during net zero by 2050, and for our country also to move towards more cleaner way of sourcing energy, so that the dependency on the fossil fuel and those energy which are actually emitting a lot of negative these emissions are reduced. Sure. And that is where we realize that this fund will not only focus on the cleaner ways of getting the energy, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से मैच खाता है, और कहीं ना कहीं ये आने वाले जनरेशन की जरूरत भी है. तो हमारा देश उस तरफ ऑलरेडी चल चुका है. अगर आप देखेंगे कि पहले हमारे 5 साल पहले शायद 100 में से एक ईवी गाड़ी होती थी. आज Mm. आज 100 में से 5 हो गई है. और there is a mandate by the authorities that by 2030 almost 70-80% of two-wheelers will be EVs, Very and true. 70% of commercial vehicles will be EV, and 30% of passenger vehicle will be EV. और आप और हम अब अगर गाड़ी खरीदेंगे सोच रहे हैं, मन में एक बार ख्याल आता है कि ईवी ले क्या. So, Yes. because also more efficient and at the same time you also contribute to society in Yeah. a tomorrow. तो ये सब सोच हमने लगा कि यार ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स ना सिर्फ सही दिशा में जा रहा है इन टर्म्स ऑफ बाइंग दोस कंपनी व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट, पर हमको ये समझ में आया कि इट्स अ ग्रेट वैल्यू माइग्रेशन प्ले फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस फॉर द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन. तो Sure. ये थॉट था Sure. हमारा इसमें. Sure. So if you were to talk about this index, so what would be the constituents of this index in terms of number of stocks, broadly the sectors being covered in this index? तो बेसिकली इसमें यूनिवर्स हमने रखा है BSE 1000 का. ये हमारा मेथोडोलॉजी अगर आप देखेंगे उसमें से हम 25 कंपनीज अभी आती है जिनका 25% और मोर रेवेन्यू फ्रॉम क्लीन बिजनेसेस से अभी आ रहा है Hmm. as of now. And the maximum allocation can be 15% in a single stock in the portfolio. और ये 6 मंथली रीबैलेंस होगा. तो ऐसा नहीं स्टैटिक पोर्टफोलियो है, 6 मंथली रीबैलेंस होगा. और इसमें रिन्यूएबल्स आएंगे. रिन्यूएबल्स में आप मान के चलिए सोलर हो गया, विंड हो गया, न्यूक्लियर हो गया, बायोमास हो गया, प्लस इसमें ईवीज आएंगे. तो ईवीज कंपनी इसमें इसका पार्ट बनेगी. साथ ही साथ इसमें रिसाइकलिंग कंपनी. तो अगर आपके पास कोई गैजेट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक है, उसका रिसाइकलिंग में कंपनी इन्वॉल्व है आज के टाइम में, तो रिसाइकलिंग कंपनीज आएगी. इसमें ई वेस्ट वाली कंपनी आएगी जो वेस्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, वो आएगी. और साथ ही साथ ई वाटर. तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक अभी योजना चल रही है जहाँ पे वो फोकस कर रहे हैं कि टू मेक अ रिवर्स क्लीन. और हमारे जो आसपास का पानी है काफी दूषित है, साफ नहीं है. तो also though some of these companies which are involved in the making these waters are clean and more better. So ये 5 आप बोल सकते हैं: रिसाइकलिंग, वाटर, ई वेस्ट, रिन्यूएबल्स, एंड साथ ही साथ में आपका आ जाता है ईवी. सॉरी इसमें Sure. 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 So Ritesh, आपके लिए almost about 1,000 stocks in this index, और उसमें से you come down. जी. तो मेथोडोलॉजी हिसाब से हम 1000 स्टॉक इंडेक्स BSE 1000 को इन्वर्स बनाएंगे. अच्छा. And it will select the companies out of which are 25% businesses coming from revenue coming from the cleaner source of energy. Right. So it's pretty much, I would say, a large, mid cap, small cap sort of exposure. Absolutely. But through this index fund, which someone gets through the Clean Environment Index Fund. Is my assessment correct? Absolutely. So इसमें आप flexi cap बोल सकते हैं actually, सुरेश जी. As of now, roughly it is close to 16% large cap and roughly 80 odd percent mid and small. But since the index fund, it will rebalance, so no static allocation. हर 6 month में वो change होता रहेगा actually. और आपने बताया कि 6 महीना में रीबैलेंसिंग होता रहेगा. रीबैलेंस होता रहेगा हर जून एंड दिसंबर, हर साल को रीबैलेंस होगा. Sure. तो एक one question which comes to our mind is that why should a distributor or an advisor look at, pitching this fund, suggesting this fund, advising this fund to their investor in their client's portfolio? Yeah, it's a very good question, honestly. इस पर थोड़ी चर्चा की थी कि today, if you have to invest, which are the spaces available for you for investing? So what past tells us is that themes which coincide with the requirement of the current times
जनरली डू वेल। जैसे हमने बात हम्म की फॉर एग्जांपल बैंकिंग की बात की, प्राइवेट बैंक्स की, हमने आईटी में सर्विसेज की बात की, एंड लॉट ऑफ वेल्थ क्रिएशन हैपन बिकॉज उस समय देयर वाज अ नीड फॉर इट। नाउ एज वी लुक एट इट, इक्विटी की एक सिंपल लॉजिक है, प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स, राइट। हमने क्या देखा है कि इसमें कि पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं जो इनका जो ईपीएस है, जो इन कंपनी का जनरली इंडेक्स पे भी हम देखते हैं, तो ईपीएस काफी बेहतर आ रहा है क्योंकि द बेस इज एक्सपेंडिंग बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड फोकस। वो एक्सपेंड हो रहा है, इन कंपनी के वॉल्यूम्स है जो इसमें इन्वॉल्व है, उनके बुक्स ऑर्डर बुक बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इस स्पेस पे ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, राइट। जो सोलर साइड पे अडॉप्शन हो रहा है रेसिडेंशियल में, इंडिविजुअल अडॉप्ट कर रहे हैं। विंड एनर्जी का अडॉप्शन काफी हो रहा है, बायोमास, न्यूक्लियर, एंड बहुत क्लीन एनर्जी है ये, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है इन्वायरमेंट को, तो इसका हम्म अडॉप्शन बहुत हाई है। एंड सो वी बिलीव दैट एज वी गो मोर अहेड, जो इसका अडॉप्शन बढ़ने वाला है, 200 250 260 गीगावाट का अभी जो हमारा गवर्नमेंट का एम है ऑन द सोलर साइड, वो एक्सपेक्टेशन है 500 450 गीगावाट के अगले 4.5 साल। अब ये हमें पता है थ्रू दिस इज व्हाट प्लान्ड इन द फ्यूचर। सो sure इफ somebody comes and invest in this fund, not only you are contributing to a portfolio जहाँ फोकस है इज मोर टुवर्ड्स क्लीनर एनवायरनमेंट इन द फ्यूचर, मोर आई मीन फोकस ऑन लो एमिशन कंपनीज। हम हमेशा बात करते हैं कि भाई कितना पॉल्यूशन हो गया है, कितना धूल मिट्टी हो रही है, कहीं ना कहीं इट इज ऑल एंड रिजल्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज एंड द प्रैक्टिसेस वी फॉलो टुडे। तो इसमें इस पोर्टफोलियो बेसिकली कंपनीज क्लीन एनवायरनमेंट के लिए है, तो ना तो हम साथ ही साथ हम क्लीन एनवायरनमेंट को यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं, और साथ ही में एक ऐसी थीम जो आने वाले समय में चूंकि इसकी जरूरत है, वैल्यू माइग्रेशन होने वाला है नॉन फॉसिल फ्यूल जो है उसमें, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, तो आप पार्टिसिपेट करेंगे वैल्यू माइग्रेशन के लिए। और हिस्ट्री बताती है जब भी आप किसी भी वैल्यू माइग्रेशन थीम में पार्टिसिपेट करते हैं, लंबे समय में एक अच्छा उसमें आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। श्योर 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 आई थिंक ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आई थिंक all the mutual fund distributors and advisors and clients listening to this particular answer is it's extremely important. Since Ritesh, we're on the discussion on the podcast, I would love to know and I would want our viewers to know through you that what has been some of the initiatives latest at Motilal Oswal Mutual Fund. तो हमने दो तीन चीजें अभी कुछ पिछले कुछ महीनों में हमने की है। तो हमने एक बहुत ही यूनिक सी एक प्रैक्टिस स्टार्ट की जहाँ पे क्वार्टरली हम रिलीज कर रहे हैं रूट्स करके, एक Hmm. हमारी मैगजीन है जिसमें हमारा फोकस रहेगा प्रैक्टिस मैनेजमेंट को बढ़ावा देना, स्पेशली विद द पार्टनर्स। Sure. व्हाट आर दोज प्रैक्टिसेस व्हिच मेक्स अ बिजनेस सक्सेसफुल। स्टार्टेड वी हैव गॉट अ वेरी फैंटास्टिक रिस्पांस आउट ऑफ इट। तो ठीक उसी तरीके से हमने पैसिव बिजनेस के लिए हमने रिफ्लेक्शन करके एक दूसरी चीज चालू की, रिफ्लेक्शन। आपको पता है जैसे सुरेन जी, वर्ल्ड वाइड फैक्टर इज अ वेरी बिग एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडिया में Hmm. भी फैक्टर्स आर फंड्स बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड एरिया, वर्ल्ड वाइड इज Hmm. वेरी वेरी बिग। तो वी आल्सो स्टार्टिंग, वी स्टार्टेड ऑलरेडी वन सीरीज हो गया है रिफ्लेक्शन, वेयर वी आर लुकिंग एट दी हाउ टू लुक एट दोज पैसिव फंड्स, factor funds, how you can participate in that. So two, one is for active practice management more towards partners, and one is understanding learning which is reflection। और साथ ही साथ हमने एक नई सीरीज चालू की है, अभी उसमें हमने 3 सेशन किए हैं, उसमें हमने वैल्यूएज करके, वैल्यूएज Hmm. में हमने आज जो पार्टनर्स की जरूरतें हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉट मेनी पार्टनर्स आर एबल टू यूज सोशल मीडिया वेरी इफेक्टिवली, Hmm. और फॉर दैट मैटर एआई, हम हर बात में एआई की बात करते हैं, बट हाउ मच एआई इज यूज्ड बाय पार्टनर्स सेल्फ। तो हमने भी 3 सेशन किए हैं, और हम लोग फ्यूचर में उसको और बढ़ाने वाले हैं, where we are actually getting an expert of the field. Hmm. We, multiple sessions will be taking partners to how to use social media, how to use AI for the business they are into, and how to be more efficient and productive so that their overall output get increased. तो ये Sure. कुछ नई चीज हमने की है अभी कुछ महीनों। So how are you communicating this to your, advisors and partners through online mode or offline mode? कैसे कर रहे हैं So आप? we are doing both. So of course, क्योंकि we are in the world now more digitally, so of course
you do digital transmission of message, of course WhatsApp and emails जो general modes of communication होते हैं, and then we are also asking our ground team to engage and inform all the partners through one-on-one and through their own broadcast channels, and some of the part group they are part of, to be a part of it. We got a good response also. So our first few sessions we have got more than 1,000 partners to participate. Response has been very, very encouraging, and that's what now we are looking at doing next set of sessions for the partners. Excellent, excellent, excellent. So, Ritesh, today through this in conversation, what message would you like to give to all the viewers listening to you about, this new fund offer of Motilal Oswal BSC Clean Environment Index Fund, and why should it be a part of their, core portfolio? तो बहुत सिंपल है सुरेंद्र जी, देखिए मैं 21 ईयर्स की इंडस्ट्री में हूँ, आप मुझसे भी ज्यादा है इंडस्ट्री में, और हमने देखा है कि अ, अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाना है, तो जो ऐसी थीम है जो इनएविटेबली बड़ी होने वाली है, उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। Hmm. जैसे आप अभी देखते हैं तो हमको लगता है कि कैपिटल मार्केट जिसका हम सब भाग है, एज अ ये होल इंडस्ट्री, दैट दैट इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, राइट। सिर्फ 5% लोग कैपिटल मार्केट में निवेश करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा बन रहा है। एमसीज है, उसमें एक्सचेंजेस है, ब्रोकरेजेस है, आरटीएस है, तो वो अपने आप में एक बड़ा एक थीम बन रहा है। तो कैपिटल मार्केट एक थीम बहुत बड़ी है। दूसरी थीम हमको लगती है डिफेंस, जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। Very जीडीपी true. का 1.9% ऑलमोस्ट डिफेंस में जाता है। और वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चरिंग का अभी बहुत पॉलिसी प्रमोट कर रही है। उसी श्रृंखला में हमको लगता है कि जो क्लीन इन्वायरमेंट है, वो Hmm. ऐसी एक थीम है जो कि हम में से आप सब उससे प्रभावित होने वाले हैं। बिकॉज अगर क्लीन इन्वायरमेंट मिलेगा, हम सबको पसंद आएगा, हम सब उसको कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं कहीं ना तरीके से। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टेट्स जहाँ पे कि रेसिडेंशियल डुप्लेक्सेस में लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं, उसमें गाड़ियां भी ईवी Hmm. उसी से चार्ज कर रहे हैं, तो फोर Hmm. व्हीलर है, टू व्हीलर। तो कहीं ना कहीं और हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम अ इन्वायरमेंट वेयर हमारी मेजोरिटी एनर्जी जो यूज होती थी एमिशन क्रिएट करती थी, to a energy source which is non-emission, which is need for the our activity, because there is a cost of using the energy, जिसके अगर हम इसको नहीं करेंगे इस चीजों को, तो जो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये और नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा और तेजी से खराब होगा। बाय यूजिंग Absolutely. रिन्यूएबल सोर्सेज वी आर मेकिंग श्योर कि जो इम्पैक्ट है वो कम इम्पैक्ट हो और धीरे हो जाए, इसका जो क्लाइमेट Hmm. वार्मिंग और जो ग्लोबल वार्मिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में मुझे लगता है कि ये जो फंड है क्लीन एनवायरमेंट फंड, जो कि सिर्फ रिसाइकलिंग, ईवीज, रिन्यूएबल्स, वाटर, ई वेस्ट, ये उस पे फोकस कर रहा है, जो कि आने वाले समय में होना ही है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी फ्यू इयर्स फ्रॉम हियर। So it's better to participate through an index fund, a fund which can encompass all these ideas into one without any biases. और आने वाले समय में सुरेंद्र जी, as and when more companies will cross revenue of 25% into cleaner energy, इसमें और भी कुछ चीजें ऐड हो सकती है, जैसे बैटरी कंपनी एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं ये आपका एक अच्छा एक लॉन्ग टर्म थीमेटिक आइडिया हो सकता है लंबे समय के वेल्थ क्रिएशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। एक्सेलेंट। इनफैक्ट जब आप समझा रहे थे इतने अच्छे तरीके से, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये जो क्लीन एनवायरनमेंट है, वी डोंट रियलाइज कि हमारी एक नॉर्मल लाइफ में कितनी चीजें हमको छू के जाती हैं बिल्कुल। जो क्लीन एनवायरनमेंट रिलेटेड है। So absolutely, completely wonderful. So, well, for our viewers, this is Mr. Ritesh Pathak, Deputy Chief Business Officer with Motilal Oswal Mutual Fund, telling us about their new fund offer, Motilal Oswal BSC Clean Environment Index Fund, launched on 5th of June and closing on 9th of June. Ritesh, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ के you took time out from your busy schedule during the new fund offer to take us through in detail as to what this fund is all about, and also the wonderful initiative which Motilal Oswal Mutual Fund has taken in the recent past few months to educate advisors and partners. Thank you very much, and wishing you and the entire team the very best for this new fund offer.
Thank you so much, Suren. It's always a pleasure talking to you. Thank you so much. My pleasure. Thank you so much. And let me remind our viewers that please subscribe to the Advisor Coach YouTube channel. अगर आपने अभी तक नहीं किया, बहुत सिंपल है, उस सिर्फ वो बटन को प्रेस करना है and you will be alerted every time. Wonderful, people like Ritesh are there telling us in terms of what's happening in the markets as well as any new opportunities coming up. Thank you, Ritesh. Thank you so Thank much. you so much. Thank you. Thank you.